Hunterian professor from UK, Dr. Umar Sadat, delivered a state-of-the-art lecture on quality research, which was attended by Vice Chancellor of Fatma Jinnah Medical University, Pro-Vice Chancellor, Registrar, Deans, faculty members and large number of students. While addressing the faculty and students on the topic of quality research, he said, "To be a researcher, you have to stay humble, because research is a very difficult thing to do if you do original research, and you will come across a lot of failures. So you have to stay humble if you want to be successful." So जो मेरा topic मैंने select किया था, it was something that perhaps I think is very important for people, not only in the developed countries but also in emerging economies or developing countries. क्योंकि हम लोग यहाँ पे we all work very hard in our medical school, and because of that, we all graduate. Some people with distinctions get a lot of medals, but something which makes you stand out and makes you different from other people is how much research you have done, and that research has to be of a good quality. Then it just doesn't work that well. लेकिन कुछ research जो है वो आपको उसका experience होना चाहिए during your medical school, and then as you go along in your career, you need to just build upon that. So here I'm trying to share some of the tips which I think you will find useful. इसमें सब कुछ है इस लेक्चर में, स्टूडेंट्स के लिए भी है, फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी कुछ इसमें होगा, बट आई ट्राई टू शेयर व्हाट आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट टू डेवलप अ रिसर्च पोर्टफोलियो. और यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आई एम शेयरिंग माई थॉट्स बिकॉज आप ये कह सकते हैं कि मे बी माई व्यूज आर अ बिट बायस्ड. सो दैट्स समथिंग विच आई वांट टू डिक्लेयर कि वट एवर आई एम सेइंग ये कोई हरफ आखिर नहीं है. इट्स समथिंग विच आई थिंक इज ऑफ सम यूज टू पीपल. दिस हैज़ वर्कड फॉर मी एंड परहैप्स इट विल वर्क फॉर यू. So जब रिसर्च करनी शुरू करते हैं तो you have to remember कि you have to stay humble. That's why I mentioned that to begin with. क्योंकि if you are arrogant and if you think that you know everything, that means that you know nothing. So you have to start off with this. जिसे कहते हैं ना खाली तख्ती या खाली स्लेट है, उसके ऊपर कुछ नहीं है. So this is how your mind should be. It should be free of all the biases, all of this kind of assumptions about yourself that you are the best. You're not the best because there's always someone with greater knowledge who's better than you. और ये तो हमारे कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि हज़रत मूसा ने जब इस बारे में जिक्र किया तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उन लोगों के सामने आ गए. So we have to think about this very carefully before we make such sweeping statements. मेरे से अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जी आप हमें कोई बुक बता दें या कोई ऐसा कोर्स बता दें कि हम अटेंड कर लें और उसके बाद हमें जो है रिसर्च की मेथडोलॉजी का पता चल जाए या वी कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग पेपर्स. और दूसरा क्वेश्चन अक्सर किया जाता है कि कौन से जर्नल्स के अंदर हम पब्लिश करें. तो मेरा तो यही उनसे दिस इज़ व्हाट आई से टू देम कि लिसन, आई कैन नॉट गिव यू अ मैजिक पिल. कोई भी ऐसी मेरे पास कोई पिल नहीं है जो मैं आपको दे सकूँ विच यू जस्ट फॉलो एंड ऑल ऑफ अ सडन यू स्टार्ट कमिंग अप विद आइडियाज़. So all I can do is I can share my thoughts with you, and perhaps you will get some inspiration from them. And this is what all the previous scholars and researchers and philosophers have said, that you cannot, fill a vessel with something, but you can just inspire people and they will fill the vessel themselves. और अगर कुरान पाक में देखें तो ये बार बार जिक्र आया हुआ है कि आप गौर करो, इसके बारे में आप तदब्बर करो, इन चीज़ों के बारे में आप तहकीक करो. तो ये अगर आप इन तमाम वर्ड्स को काउंट करें तो ये हंड्रेड्स में जाते हैं. And why I'm mentioning all these philosophical and religious things here, because that's what inspires me at least. So I think if you look at it, and being residents and citizens of Islamic Republic of Pakistan, I think we should get inspiration from our religion. कि इसका हुक्म तो हमें हमारे religion से भी मिला हुआ है. So what we are doing is basically just carrying out what the religion demands of us. So it's something for you to kind of think about as well. और ये कहीं जो सफ़र है ये सारा इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी. इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पेन एसोसिएटेड विद इट. देयर आर अ लॉट ऑफ फेलियर्स. आप जब एक पेपर लिखेंगे और आप उसको सबमिट करेंगे किसी जर्नल को, आपके अंदर काफ़ी फियर भी होगा. यू विल फील शाय कि पता नहीं पब्लिश होता भी है नहीं, एंड मे बी यू विल गेट सम रिजेक्शंस एज वेल. एंड दीज आर ऑल द सफरिंग्स. अगर आप अपने मुल्क को छोड़ के बाहर कहीं जाके काम कर रहे हैं तो यू आर सेक्रीफाइसिंग, बिकॉज योर पेरेंट्स मे वेल बी हियर जस्ट लाइक माइन, और आपकी फैमिली भी यहाँ पे हो सकती है. यू विल सफ़र फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स. So you have to think that there is no journey which is without a suffering.
प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, डीन्स यहाँ बैठे हुए, they have all worked very hard to be here. So you have to think about it in a very rational way, कि there is no shortcut in life, so you have to work hard. यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एक रिसर्च पोर्टफोलियो जो एक आइडियल तो खैर नहीं मैं कह सकता, देयर इज़ नथिंग आइडियल एक्सेप्ट आवर रिलीजन, लेकिन ये कि जो रिसर्च पोर्टफोलियो है टेम्पलेट उसका किस तरह से आप उसको फॉलो कर सकते हैं टू मेक अ बेटर सीवी फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आप जब भी सीवी अपना बनाएंगे तो आपके पहले नाम आएगा, उसके बाद व्हाट्स योर करंट स्टेटस इज़, देन यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि आपके पास जो आपकी मेडिकल एजुकेशन है, टू बी योर MBBS, यू विल राइट अबाउट योर FSC, उसमें आपने कितने मेडल्स लिए, वो तो हर एक का आएगा यहाँ पे, लेकिन उसके बाद फिर असल में डिफ्रेंसिएशन आप कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ गुड रिसर्च पोर्टफोलियो, क्योंकि जब भी कोई रिव्यूअर आपकी या कोई एग्जामिनर आपकी CV देखेगा तो दिस इज़ व्हाट विल मेक यू स्टैंड आउट, स्पेशली ऑन द इंटरनेशनल स्टेज. सो जो यहाँ पे मैंने टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं ये सारी UK से रिलेटेड है, बट व्हाट आई विल डू इज़ आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये पाकिस्तान में कौन सा जो ट्रेनिंग स्टेज है वो किस तरह से इसके साथ कंपेयर करती है. तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्राई टू पब्लिश एज मच एज यू कैन. जिस तरह प्रोफेसर खालिद गुज़र साहब ने बताया, डॉक्टर शबीर ने बताया कि यू हैव अ जर्नल ऑफ योर इंस्टीट्यूट विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस जर्नल, आप उसमें ज़रूर पब्लिश करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. इफ़ यू थिंक कि हमने इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करना है, दैट इज़ ऑल फाइन, बट व्हाट हैपन्स इज़ कि जो हमारी मादरी ज़ुबान है दैट इज़ उर्दू, उसकी वजह से ये होता है कि जब हम ड्राफ्ट करते हैं इंग्लिश में तो इट इज़ नॉट ऑफ अ क्वालिटी विच इज़ कंसिडर्ड यू नो ऑफ अ वेरी हाई लेवल व्हेन यू सेंड इट टू इंटरनेशनल जर्नल्स. एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, अभी भी मुझे बाज़ दफ़ा ऐसे रिव्यूअर से कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ कैन यू गेट योर आर्टिकल रिवाइज्ड बाय अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर. अब मुझे वहाँ पर 17 साल हो गए रहते हुए, एंड समटाइम्स आई जस्ट लाफ एट इट कि अभी भी मेरी अंग्रेज़ी उस लेवल की नहीं है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि डोंट टेक इट इन एन ऑफेंसिव वे, बट देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. तो आप अपने जो है इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, अपनी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस के लिए लोकल जर्नल्स के अंदर आप पब्लिश करें, जिसमें आपका FJ का जर्नल है, किंग एडवर्ड का भी जर्नल है, इसी तरह पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जर्नल है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स का जर्नल है. सो ट्राई टू पब्लिश इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स बिकॉज इट विल गिव यू राइटिंग प्रैक्टिस एंड यू विल नो हाउ टू ड्राफ्ट दीज थिंग्स. सो ये जो शुरू की जो मैंने जिस ऑर्डर में इसको अरेंज किया, दिस इज़ व्हाट आई कॉल द लैडर ऑफ रिसर्च, कि एक सीढ़ी है जिसके मुख्तलिफ जो है ये आपके पास डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसको आप स्टेप वाइज इसके ऊपर आप जा सकते हैं. जो सबसे इजी चीज़ है ना पब्लिश करना, वो होता है केस रिपोर्ट या केस सीरीज़. अब यहाँ पे इतना वर्कलोड है लाहौर में और इन पाकिस्तान बिकॉज द डिजीज़ बर्डन इज़ जस्ट एस्ट्रोनॉमिकल. तो आई थिंक आप कोई भी एक इंटरेस्टिंग केस है विच यू थिंक इज़ क्वाइट यूनिक, यू शुड ट्राई टू राइट इट अप एंड यू शुड ट्राई टू पब्लिश इट. लेकिन जब भी पब्लिश करना चाहें तो प्लीज़ हैव अ लुक, पबमेड में जाके MBase में जाके पहले देख लें कि वो पहले पब्लिश तो नहीं हुआ, क्योंकि अदरवाइज व्हाट यू विल डू इज़ यू विल एंड अप इन राइटिंग अ केस रिपोर्ट और अ केस सीरीज, फिर आप देखेंगे यार ये तो पहले पब्लिश हो चुकी हुई है, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पब्लिश इट अगेन. सो ऑलवेज सी के पहले क्या हो चुका हुआ है, मे बी इट हैज़ बीन पब्लिश, बट ट्राई टू फाइंड एन एंगल विच हैज़ नॉट बीन एड्रेस्ड. इसको आप थोड़ा सा नेविगेट करना सीखें इस चीज़ को, एंड दैट विल ओनली कम विद टाइम, एंड दैट्स वेयर योर मेंटर्स, योर टीम्स विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू इंशाल्लाह. केस रिपोर्ट के बाद दूसरी चीज़ है लेटर टू एडिटर्स. अगर आपको कोई अच्छा आर्टिकल मिलता है कहीं पे तो आप देख सकते हैं कि अच्छा इसमें ये फ्लॉज है, मे बी मैथडोलॉजी में फ्लॉज हो, मे बी वो किसी ख़ास पॉपुलेशन के बारे में आर्टिकल को किसी ने लिखा हो. हमारी पॉपुलेशन का जो डिजीज़ पैटर्न है मे बी इट्स अ बिट डिफरेंट एंड मे बी यू हैव गॉट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस यू नो ऑफ दैट प्रॉब्लम. So what I would suggest is कि आप उसको अपने एंगल से देखें and try to write a letter to the editor and then try to share it with different journals. और अगर आप देखेंगे journals like New England Journal of Medicine, Lancet और BMJ, ये नाम सुन के ही लगता है कि पता नहीं यार ज़िंदगी में शायद एक दफ़े पब्लिश होगा इसमें आर्टिकल हमारा. And this is what my colleagues say to me as well कि यार New England Journal में एक पब्लिकेशन हो गई, I think we are done for life. लेकिन आप इस पर यकीन करें इस बात पे कि इफ़ यू कैन सबमिट अ लेटर टू एडिटर इन न्यू इंग्लैंड जर्नल फ्रॉम अ इमर्जिंग कंट्री और अ डेवलपिंग कंट्री, दे विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट बिकॉज दे आर ऑल द टाइम ट्राइंग टू लर्न एंड सी बाकी पॉपुलेशन में डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, उसका प्रेवलेंस कैसा है. तो डोंट शाई अवे फ्रॉम इट, दैट्स समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है. उसके अलावा ये कोहॉर्ट स्टडीज़ हैं, और कोहॉर्ट स्टडीज़ के साथ ये QIP से मतलब है ऑडिट क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट.
कि आप जो प्रैक्टिस करते हैं हाउ डज दैट कंपेयर टू द स्टैंडर्ड्स। अब हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड्स जो है इतने एस्टैब्लिश तो इस वक्त नहीं है, लेकिन यू कैन ट्राई टू एस्टैब्लिश दो स्टैंडर्ड्स और उसके बाद फिर आप कंपेयर करें कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। आई जस्ट गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि आपके ड्रग चार्ट्स होते हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि अच्छा ड्रग चार्ट जो है ये प्रॉपरली फिल्ड है या नहीं है, इसके ऊपर जो डायरेक्शन थी किसी मेडिसिन की वो सही फील्ड थी, हाउस ऑफिसर्स ने सही फील्ड की थी या नहीं। यू कैन ऑडिट दैट, आप उसको देखें, then do the recommendations and then re-audit it in a month's time or 2 months' time after you have implemented those recommendations, and you will complete an audit cycle. And all these things will be quite useful for you in a CV जब आप apply करेंगे किसी international institute में, so these things will carry huge weight, you know, for yourself. Cohort studies, I don't have to explain it. I'm sure that you know what cohort studies are. Randomized controlled trials के बारे में one thing which is very important to mention is that these are very difficult to organize and to fund. और हमारे पास फंडिंग का हमेशा से फुकदार रहता है, not only in Pakistan but also abroad. So you can get a feel that whatever I'm saying is not कि पाकिस्तान में ये मसला है, बाहर नहीं है, ये मसले हर जगह के ऊपर ही। All you have to do is try to find a way out of it. तो इसमें ये है कि you have to reach out to big pharma, you have to reach out to people who can give you some charitable funds which can help you do the randomized control trials. लेकिन जो भी प्रोजेक्ट करें वो इस सोच के साथ करें कि you complete it. अक्सर ये होता है कि आप randomized control trial पकड़ लेते हैं but it takes years or months to do. So try to do a project which you can finish and you can see the results of it, which you can put on your CV to show. जो फाइनल चीज़ है वो है investigative projects. These are really difficult to do, and इसके लिए आपको basic science का थोड़ा सा collaboration होनी चाहिए, and you need to have good mentors who have done PhDs, who have done MDs, and who know what an investigative project is. So these are important things, but this is like at the top of the pyramid. And if you fancy taking up something really challenging, then investigative projects like looking at the pathophysiology of some disease or some pathway or trying to look at a receptor, that's where the investigative projects come in. अब डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आपकी कितनी पब्लिकेशन होनी चाहिए। अब ये कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको नुस्खा, ये यहाँ के लिए मुझे नहीं पता कि कितना इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, बट फॉर यूके और फॉर यूएस इट इज़ ऑफ क्वाइट सम यूज़। अगर आप हाउस ऑफिसर लेवल के ऊपर हैं तो यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1 or 2 पब्लिकेशंस, क्योंकि जब आप सीनियर हाउस ऑफिसर लेवल पे जाते हैं तो दे विल बेसिकली गिव यू द प्रोग्राम ऑफ योर चॉइस इफ़ यू हैव 1 or 2 पब्लिकेशंस। और वो जो है आपका SHO जॉब जिसे कोर मेडिकल ट्रेनिंग या सर्जिकल ट्रेनिंग कहते हैं, उसमें आपकी कम से कम 6 पब्लिकेशन बाय द एंड ऑफ इट हो जानी चाहिए। द रीज़न इज़ कि जब आप रजिस्ट्रार प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करते हैं विच इज़ योर 5 or 6 years प्रोग्राम लीडिंग टू FRCS, या आपने मेडिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, तो जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसमें अगर आपके पास 6 पब्लिकेशन हैं दे गिव यू फुल मार्क्स। सो यू नीड टू हैव 6 पब्लिकेशंस ड्यूरिंग योर SHO years विच इज़ 2 years or 3 years ऑफ ट्रेनिंग। सो दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। जब आप रजिस्ट्रार में ट्रेनिंग में एंटर हो जाते हैं विच इज़ व्हेन दे रियली टीच यू हाउ टू ऑपरेट, या फिर आप एज अ फिजिशियन ट्रेन होते हैं जाके, तो उसमें देयर इज़ नो सेट मेथड कि आपकी इतनी पब्लिकेशंस होनी चाहिए। You can do as much as you want. What they say is that you need to have 2 or 3 first author publications or publications जिसमें आपने contribute किया हो। लेकिन if you're a good researcher, enthusiastic, then you need to keep publishing. और अगर आपको आदत पड़ गई है रिसर्च करने की from the first few years, then 1 publication a year I think is not a big problem for you. You can easily do it. But most of the time what happens is कि लोग जो है इस लेवल तक तो मेहनत करते हैं, वहाँ पे पब्लिकेशंस काफ़ी निकाल लेते हैं कि रजिस्ट्रार बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद then they just go back to their normal selves, और उसके बाद they just carry on with their clinical training and they don't worry about research anymore. फिर वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होती है जाकर, ऐसे बाइफिकेशन कि किसने क्लिनिशियन बनना है और किसने एकेडमिक सर्जन या एकेडमिक फिजिशियन बनना है। और कंसल्टेंट्स के लिए यह है कि आप जो भी काम करें, जो भी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं, इट हैज़ टू बी इम्पैक्टफुल। आई नो कि प्रमोशंस के लिए आपको पब्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, देयर आर गाइडलाइंस फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन, यू नो दैट यू हैव टू फॉलो दैम बिकॉज ऑफ कोर्स यू वांट टू मूव अप द लैडर। लेकिन कोशिश करें कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट हो, ताकि हम भी ये कह सकें कि यार ये काम पाकिस्तान में हुआ है, वी आर रेफरेंसिंग द वर्क फ्रॉम पाकिस्तान, एंड दैट वुड बी अ रियली प्राउड थिंग फॉर अस टू डू इन द वेस्ट एज वेल। So I think that is something for the senior faculty to focus on, perhaps.
प्रेजेंटेशन जो सी आप देखें, आपने जो भी काम यहाँ पे किया ना इस फर्स्ट स्टेज के ऊपर, यू कैन प्रेजेंट इट, इट्स ईजी. सो यू कैन डू अ प्रोजेक्ट, इट्स अ केस सीरीज और इट्स अ कोहॉर्ट स्टडी, यू कैन प्रेजेंट इट. और जब प्रेजेंटेशन करते हैं उसके सेपरेट मार्क्स हैं आपके लिए. सो यू नीड टू काइंड ऑफ प्रेजेंट इट इन योर, आपकी जो यहाँ पे मॉर्टेलिटी मीटिंग्स होती होंगी, आपकी यहाँ पे CPC वगैरह होती होंगी, या जो भी आपकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं या जर्नल क्लब होते हैं, आप उसमें प्रेजेंट करें अपने वर्क को, एंड देन पुट इट ऑन योर CV, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स शो टू द इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स या जो भी आपका रिव्यू कर रहा है आपका CV, कि यू नो वट इस गेम को किस तरह से प्ले करना है. सो इट्स बेसिकली अ गेम दैट यू हैव टू प्ले. रीजनल मीटिंग्स भी हैं, नेशनल, इंटरनेशनल. और अब तो कोविड का एक जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, फ़ायदा ये हुआ है कि दे आर वर्चुअल मीटिंग्स नाउ, सो यू डोंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू गो टू USA. आई एम प्रेजेंटिंग माई रिसर्च इन अ वीक्स टाइम इन शिकागो, बट आई एम नॉट गोइंग देयर फिजिकली. एक तो टिकट बहुत एक्सपेंसिव एंड ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू थिंक अबाउट. सो यू कैन जस्ट डू इट ऑनलाइन, जूम के ऊपर सब कुछ हो सकता है. सो आई थिंक इट हैज़ facilitated how you disseminate your research. So please use this facility, because then you can have an international audience, or your tick box exercise like you have an international presentation, you will also achieve that if you do it. Awards जो से हैं, you will get awards inshallah. You can get awards here, you have got distinctions, but if you do good research and you present it in your local, regional meetings, there should be some awards, first, second, third, whatever it is, put it on your CV. And this is really important. International के ऊपर भी young investigator awards वगैरह होते हैं, emerging countries के awards होते हैं, so apply for all those things, and if you have good research and you have a good idea, inshallah you will be successful with it. ट्रैवल अवार्ड्स वगैरह भी आपको मिल सकते हैं. दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अवार्ड्स. इसमें यह कि यू आर अनएबल टू फाइनेंस योर ट्रिप, सो लुक एट दैट कॉन्फ्रेंस एंड सी के वो क्या ट्रैवल अवार्ड्स आपको कह रहे हैं फ्रॉम इमर्जिंग कंट्रीज या इवन इन जनरल. सो जस्ट अप्लाई फॉर इट. बिल्कुल शाई होने की जरूरत नहीं है. वो सबसे व्हाट विल द वर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन, दे विल रिजेक्ट इट, सो व्हाट, यू जस्ट हैव टू ट्राई. सो डोंट शाई अवे फ्रॉम ट्राइंग. रिसर्च कोर्सेज जो है, दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट. इसमें रिसर्च मैथडोलॉजी कोर्सेज हैं, आई एम श्योर के हर यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज जो है इस वक्त हो रहे हैं. यू कैन डू ऑनलाइन कोर्सेज, यू कैन गो टू स्टैनफोर्ड, MIT वेबसाइट्स, वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज पड़े हुए हैं इस वक्त, एंड यू कैन ईजिली रजिस्टर फॉर विद दोज कोर्सेज एंड यू विल गेट अ ऑनलाइन सर्टिफिकेट. इट्स बेटर टू हैव दो सर्टिफिकेट्स दैन हैव नथिंग. सो डू ऑल दीज रिसर्च मैथडोलॉजी कोर्सेज, और आपके जो लोकल कोर्सेज हैं उसको भी आप अटेंड करें. स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और इससे आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाती है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द रिसर्च दैट यू आर डूइंग. बिकॉज आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन मे बी यू डोंट नो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दैट, एंड हैविंग द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स विल बेसिकली गिव यू एन आइडिया what the limitations of your idea is, because then you can refine your project and then make it a bit more robust. उसके बाद ये चीज़ें मेरे से अक्सर जो है कि ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स व्हेन दे रीच आउट टू मी, दे ऑलवेज आस्क कि सर हमने सिस्टमैटिक रिव्यू करना है या मेटा एनालिसिस करना है, एंड alhamdulillah they are doing quite well. I've supervised quite a few of them. They are doing quite well, and it's not a very difficult thing to do. So you can learn systematic reviews, क्योंकि इसमें आप ये कह रहे हैं systematic reviews जो है it is level 1 evidence. So that is the strongest evidence that you can present. And what you have to do is you have to look up what is published already, and you can combine all of that information and do statistics on them if you know how to do it, and you can publish based on other people's work. So इसमें आपका ये you don't have to work that hard. All you need to know is what the research methodology is. So I think this is something which I would strongly suggest कि आपके level के ऊपर who are medical students or who are postgraduate trainees, they basically learn how to do a systematic review and try to do a few of those, because it's good on your CV. It looks really impressive to have a few systematic reviews. Artificial intelligence के आजकल बहुत ज़्यादा आप buzzwords सुनते होंगे, जनाब AI में ये कर दिया. To be very honest with you, I'm still learning. अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी आगाही आई है, and I'm just learning it from my colleagues in Cambridge. लेकिन ये है कि this is something for you as students or as doctors in training to learn. It's a very easy skill to learn. What is AI? AI is basically data mining. This is as simple as that. Artificial intelligence में आप coding को छोड़ दें, लेकिन artificial intelligence सिर्फ और सिर्फ statistics का नाम है. There are of course advanced methods involved in it. लेकिन अगर logistic regression देख लें, linear regression देख लें, these are all parts of artificial intelligence.
So it's basically statistics. But of course, as you go along the journey, you'll learn the advanced methodology as well. And अगर आपकी courses आपने किया 2 भी AI की courses किए हुए हैं, trust me, your CV will stand out. If you apply for a PhD studentship abroad, people will really value कि यार इस बंदे ने ये काम अच्छा किया हुआ है, and he knows where the world is going. So try to learn something about AI and do these courses. MIT में आपको बहुत courses मिलेंगे online. So register for those courses and they are for free. इसके अलावा यहाँ पे कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन जो है वो भी कोर्सेज करा रहे हैं, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम फॉर मेकिंग सच अ रोबस्ट FCPS प्रोग्राम विच इज़ रियली एडमायरेबल. Because when I was in my medical school at that time, things were not as streamlined as they are now. And all the credit goes to Professor M.GONDAL sahab and all the council of the College of Physicians and Surgeons who have done this amazing job. आप इससे बिल्कुल इन कोर्सेज को अटेंड करें, और अगर आप समझते हैं कि ये कोर्सेज आपके लेवल से ऊपर है तो आप मेरे ख्याल में उसमें कोई ना कोई लीव हो सकता है कि अगर आप जूनियर लेवल पे हैं तो मे बी देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ facilitation which the college can do for you, because आपके CV में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ATLS, research methodology and all the systematic review, किस तरह से आपने करना है. Even if you are not a PG student, you should be able to do these courses. फंडिंग के बारे में मैंने बताया, it's a problem everywhere in the world. कोविड के टाइम पे फंडिंग वाज a huge issue in the West as well. और मेरा रिसर्च ग्रुप जो था that suffered a lot as well. I had to basically break my research group just for that simple reason, because there was no research funding coming through. People had to stop their research. All the money was going towards COVID research. So ये problem जो है this is always there. So इसलिए मैं कह रहा हूँ कि please don't feel कि आप पास funding नहीं है so your idea is going to go wasted. आप फिलैंथ्रोपिक जो यहाँ पे चैरिटीज़ हैं या जो लोग मुखय्यर हजरात हैं, आप उनसे रब्ता करें, उन्हें कहेंगे ठीक है आप चैरिटेबल काम कर रहे हैं, यू आर सपोर्टिंग एन ऑर्फनेज और यू डूइंग थिंग्स ऑन दोज लाइंस, बट प्लीज़ ऑल्सो स्पॉन्सर सम रिसर्च. क्योंकि अगर आप देखें ऑर्फनेजेस हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग विच हैज़ हैपेंड फॉर समवन टू बी एन ऑर्फन, समवन हैज़ लॉस्ट देयर फादर और मदर, यू नो. तो आप उस चीज़ के ऊपर एड्रेस करें जो उसकी रूट कॉज है, दैट इज़ अ डिजीज़. क्योंकि कितने ही लोग हैं हमारे जो यहाँ पे at a very young age they pass away, and this is because our healthcare system is not as developed as it should be, and you should be fighting for your patients and you should make them live as long as they can. हम तो mediators हैं, करना तो अल्लाह ताला ने सब कुछ है, but at least from our side we should try to do as much as we can. और जो यहाँ पे स्टेज के ऊपर सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, आई थिंक आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट देम कि आप जो इस तरह के मुखय्यर हज़रात हैं आप उनसे रब्ता करें, आप उन्हें कहें कि आप हमें डोनेट करें, आप हमें यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस करें फॉर अ रिसर्च फंड, क्योंकि हम लोगों ने स्टूडेंट्स को PhDs करवानी है. एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप देखें बिल गेट्स हैं, दे हैव गॉट अ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. कैम्ब्रिज के अंदर बिल एंड मेलिंडा गेट्स के नाम से चेयर्स इस वक्त चल रही हैं, वहाँ पे स्टूडेंटशिप्स जो है वो वहाँ पे स्पॉन्सर की जाती हैं, कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं. वाई डोंट वी डू इट है? आई एम रियली सरप्राइज कि हम सारे का सारा चैरिटी जो है ना वो सदक़े और खैरात तक किसी और नीयत से हम कर देते हैं, लेकिन फॉर एजुकेशन मे बी वी हैवंट फोकस्ड ऑन दैट. सो आई थिंक आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसके बारे में लोगों के अंदर आगाही पैदा करें, उन लोगों को इंस्पायर करें कि आप इस तरफ भी कंट्रीब्यूट करें प्लीज़. इसके अलावा ये रिव्यूअरशिप आपको इंटरनेशनल जर्नल्स की मिलना शुरू हो जाएगी. जब आप पब्लिश करेंगे तो यू विल गेट एन ईमेल फ्रॉम सम जर्नल कि आप हमारे लिए रिव्यू करें, क्योंकि रिव्यूअर्स आर नॉट पेड. आई रिव्यू फॉर डिफरेंट जर्नल्स, आई डोंट गेट पेड anything. It's basically a goodwill, and this is what we call peer-reviewed research. Okay, you are basically reviewing an article without having any financial incentive, and that is why it's unbiased, or it should be unbiased. Of course, there are biases, क्योंकि बाज़ दफ़ा उसमें भी कुछ बातें आ जाती हैं, because there are certain researchers who want their research to be published first. वो जानबूझ के दूसरे का आर्टिकल रिजेक्ट कर देते हैं. This thing happens in the West as well. But if you know those reviewers कि वो कौन रिजेक्ट करेगा, जब आप आर्टिकल अपना सबमिट कराते हैं तो लिख दिया करें वहाँ पे कि I don't want these reviewers, and they will look at that. And this is a normal thing जब आप सबमिट कराते हैं. And I always say that because the field in which I work, there are only 1 or 2 people in the world who are working on that, and I know they want me to publish later than them. So you have to put their names there. इसमें कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है. It's something that you need to be aware of. एडिटोरियल बोर्ड की भी आपको इन्विटेशंस आएंगी वक्त के साथ साथ, लेकिन यह है कि एज यू गो अप द लेटर, एंड दीज आर ऑल थिंग्स विच विल गो ऑन योर CV. ये सब CV बिल्डिंग प्रोसेस है आपके लिए.
तो जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, these are all the tips that I'm sharing with you which you will find helpful to build up a CV which will help you compete at an international stage. और फिर अल्टीमेटली ये है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा रिसर्च पोर्टफोलियो बढ़ जाए आपका, एंड यू हैव अ नेम ऑन इंटरनेशनल स्टेज, दैन जो रिव्यूअरशिप जो है रिसर्च फंडर्स की, वो आपको फिर अप्रोच करती है. जिस तरह अगर कोई गेट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है, दे मे रीच आउट टू मी, गेट्स वाले मुझे कह सकते हैं कि आप देखें जी ये लड़का ये आइडिया लेके आया है, तो इज़ इट वर्थ इन्वेस्टिंग इन, एंड आई कैन बेसिकली से yes or no to it, and I can score it for them, or I will interview for them. So this is all something which adds things to your CV, and it shows कि how good a researcher or an academic you are. ये जो questions हैं, ये मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हम research topic किस तरह select करें. फिर ये भी मेरे से पूछा जाता है कि किस जर्नल में पब्लिश करें. आई थिंक ये जो सेकंड वाला पार्ट है वो तो मैं एड्रेस कर चुका हूँ कि लोकल में भी पब्लिश करें, इंटरनेशनल में भी करें, लेकिन यहाँ तक है ना कि टॉपिक को किस तरह सेलेक्ट करना है, उसमें यह कि यू नीड टू हैव ए वेरी गुड आइडिया अबाउट योर सब्जेक्ट फर्स्ट. क्योंकि अगर आपको अगर आप आइडिया जनरेट करना चाह रहे हैं बट यू हैव नो आइडिया अबाउट योर सब्जेक्ट, यू डोंट नो द ब्रेड्थ ऑफ इट एंड यू डोंट नो द डेप्थ ऑफ इट, you may well think that you have a good idea, but maybe it's already been done, maybe it's something which everyone knows about already, so aap time waste karenge. So please have good knowledge base and also do a literature search before you go on to taking up a topic for research. अक्सर ये होता है कि आपको कोई सीनियर, आप उससे कोशिश करते हैं टिप लेने की, वो कहते हैं कि आप ये इसके ऊपर रिसर्च कर लें, आप काम शुरू कर देते हैं, and then after you have done your work, you've done an abstract and you try to publish it नहीं होता, then you realize कि ये तो काम पहले कई दफ़ा हो चुका है, there's nothing new in it, and then you get depressed or frustrated. So इसके बारे में थोड़ा सा ग्राउंड वर्क पहले कर लें. इस तरह ना करें कि हमारे सर ने कहा था, ये प्रोफेसर ने कहा था, तो it should be fine. Maybe he doesn't know that something has already been published, it's recently been published. So there's no offense to, you going to your professor and saying कि सर ये तो काम हो चुका है पहले, तो maybe he will refine that question for you and then you can work on it. ये जो मैंने यहाँ पे एक स्लाइड लगाई है, this is something which people use to come up with philosophical questioning कि किस तरह से आपने जो है थीसिस को या एक नल हाइपोथेसिस को आपको किस तरह जनरेट करना है. एक तो होता है कि बिल्कुल सुपरफिशियल सा क्वेश्चन ले लिया आपने कि जी हम अपने वार्ड का जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. दैट इज समथिंग ऑफ कोर्स it may well be publishable, but looking at the real fundamentals of a problem is really what makes your research stand out. और ये है एक reiterative process है कि आप एक पहले क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि क्या इससे मैं वाकई को डिफरेंस लेके आ सकता हूँ लिटरेचर के अंदर या नहीं. फिर you will refine that question again, you will refine that again, and you will refine that again, and you keep doing it till that question becomes such a fundamental question to answer that people will find that this will really add something to the literature. And this is what we call the Socratic method. अब आप ये देख रहे हैं कितने हज़ार साल से ये काम चल रहा है, लेकिन how many times do we follow it? इसको हमने philosophy का नाम दे के हमने इसको ना एक डस्टबिन में फेंक दिया हुआ है. But the researchers who are working in elite institutes, the people who win Nobel Prizes or win big awards, this is the method they use. They don't rush into any project. They refine that question again and again till they come up with a question which can really make a difference. So this is how it works. So you have इसको आप ऐसा समझ लें कि जिस तरह एक अनियन नहीं होता प्याज, उसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं, उसको आप पील करते जाएं and then ingrained है. It's a reflexive thing. तो जो रिसर्चर होता है ना, वो सिस्टम 1 को सुप्रेस करते हैं और सिस्टम 2 which is a reflective, deliberative kind of work, this is what really drives the thinker. So आप इस प्रोसेस को आपने ना reinforce करना है, the system 2 thinking. ये बुक जो है, it's a very nice book, read it. I'm sure you'll find some PDF on Google, but do read it, and it will give you an idea that how you can reinforce system 2. और system 1 को आपने किस तरह से ज़्यादा अहमियत नहीं देनी, क्योंकि we are very impulsive people, we are a very impulsive society as well, and this is not only in Pakistan but internationally. So just try to reinforce system 2 please. इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको लिटरेचर सर्च खुद करनी चाहिए, एंड प्लीज़ डू नॉट ब्लाइंडली टेक अप अ प्रोजेक्ट कि जनाब सुपरवाइजर साहब ने ये कह दिया तो वो हद पे आखिर है. आप देखें, मे बी इट्स एन आइडिया वर्थ लुकिंग इनटू, बट do your own research, and then if there are some ideas, do go back to them, because जो अच्छा मेंटर होता है वो कभी भी आपकी बात को ना
as a in a negative way नहीं लेगा उसको कभी भी, because he also would like to improve. I always like to improve. I think with my students, I dream with them, I meet them in cafes. I don't meet them, I don't talk with them, you know, in a classroom का setting उस तरह में, because you need to be in a free place and you need to be in a right environment where you can think, and they need to be in a very relaxed environment कि जो उनके दिल में ना वो बता दें आपको. तो अगर आप उनको बिल्कुल एक caged environment में रखेंगे ना, तो they will never become free thinkers. What you want the students to be is to become free thinkers, and that is what makes a society a very you know, a thoughtful society. कि आपके अंदर free thinking की ability आनी चाहिए. फिर ये कहा जाता है कि ये काम तो पहले हो चुका हुआ है, तो इसमें कोई माइलेज है. Yes, there's always some mileage, you know, in modifying someone else's idea, but वो rehashing होगी फिर. And I'll be very honest with you, I'll admit here in front of everyone that I have rehashed ideas, but you need to get inspiration from someone. अब हर एक के पास तो आइडिया ऐसा नहीं आएगा कि जो which will be groundbreaking. So you have to read enough literature and maybe you will get some inspiration कि अच्छा इस टॉपिक के ऊपर इस नोयत का काम हुआ है, तो I would try to make it slightly different so that it get published. It's a bit of a game as well, so you have to learn how to play the game and you will get good at it, you know, with time. ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसके ऊपर मैंने पहले एक लेक्चर दिया था कि what is a landmark work and what is incremental value work. Incremental value ये होती है कि पहले काम हो चुका है and you make slight improvements in it, and that is just like 1 to n because 1 already exists. So 1 से आप 2 से 3 पे जा सकते हैं. लेकिन जो सबसे मुश्किल काम होता है ना वो होता है 0 to 1, क्योंकि 0 के ऊपर there is nothing in existence and all of a sudden you have an idea. How do you get that? उसके लिए you need to be, जैसे कहते हैं ना, आपको डूबना पड़ेगा इस समंदर के अंदर, and you have to think, dream and breathe research. And I know with the clinical commitments and with the social pressures that we have in our country here or even abroad, it's not that easy. Private practices होती हैं आपकी, you have to look after your family and all those things. It's not very easy to do all these things at the peak capacity all the time. But you need to train yourself if you want to be a good academic. और इसमें आपकी कैरियर स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि जो मेडिकल स्टूडेंट है वो मेरे पास ये वाला आइडिया लेके आएगा 0 to 1, इट्स पॉसिबल, यू मे वेल बी एबल टू डू इट. जो नोबेल प्राइज विनर्स कैम्ब्रिज से निकलते हैं, दे आर बेसिकली अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं आमतौर पे. वो द आइडियाज आर बॉर्न व्हेन दे आर इन देयर बैचलर्स, यू नो, दैट्स व्हेन दे कम अप विद दिस आइडियाज. एंड I think I wouldn't shy away from saying it's just because there is a spectrum of autism involved in that as well. I'm not saying that that's a good thing in itself, but those people are a bit asocial. They're quite reserved and they just do their own thing and think in a different way. So people are born like that, but hard work can even beat those people. So don't think if someone is gifted and that's what it is. No. With hard work, you can beat anyone in the world. So try working on those ideas that you have. Mentor का मैंने आपको बताया importance कितनी ज़्यादा है, than the resources which I've talked to you about. और वही important चीज़ है कि एक idea जो है ना, that is more powerful than hundreds of worthless ideas. And I think this is really important for you to remember कि don't go for quantity, go for quality. ठीक है, promotions के लिए अगर कोई rules ऐसे बने हुए हैं कि you have to have X number of publications, अब ये तो ऐसी एक चेन है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, बिकॉज यू हैव टू मूव अप द लैडर. लेकिन ये कि जो सीनियर यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स बैठे हुए हैं हु कैन बेसिकली इन्फ्लुएंस दोज पीपल हु मेक दोज पॉलिसीज, आप उनको बताएं कि दिस इज व्हाट रियली मैटर्स. आई एम श्योर दे नो दैट, बट फॉर सम रीजन इट मे द चेंज मे विल बी अ स्लो इन कमिंग, यू नो. सो थिंक अबाउट इट लाइक दैट प्लीज. मैंने आपको पहले बता दिया आइडिया जनरेशन किस तरह से होती है. इसमें ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपके पास बड़ा एक अच्छा आइडिया आता है और आप अपने किसी मेंटर के पास या जिसके साथ आप अपने राज़ो न्याज़ शेयर करते हैं, आप उसके पास जाके कहते हैं कि ये मेरे पास आइडिया है, एंड देन ही सेज कि यार दिस इज जस्ट रबिश, एंड यू जस्ट फील डिफ्लेटेड कि यार क्या हो गया मेरे साथ. इट हैज़ हैपेंड टू मी बिफोर. I worked on an idea for almost 2 years during COVID, and I was totally at a point of failure, like physically and mentally. I was so exhausted because I was all thinking about that idea that I wanted to work on. और मैं अपने PhD mentor के पास लेके गया उस आइडिया को. उसने कहा यार ये काम तो जो है इसका तो फ्यूचर ही कोई नहीं है.
And I can tell you, जब मैं वापस आया तो my shoulders were like drooping. I had no energy in me. I couldn't take one step. कि यार इसके ऊपर मैंने 1.5-2 साल लगा दिए, and this is what he's saying to me. But I had to pick myself up and try to see कि इसको मैं किस तरह से resurrect कर सकता हूँ इस idea को, which I did. But what I'm trying to say is कि don't take other people's negativity. उसको दिल पे ना लें उसको. Try to get some criticism and see कि उसको किस तरह से constructively आप use कर सकते हैं, and then try to build upon that idea that you have. Yeah, मैंने लिखा salami slicing. Salami, you know, it's like a big piece of meat and you can just slice it, which means that आपके पास एक idea and you, rather than publishing all of it as one good paper, you basically divide it into a few. I have been guilty of doing that as well. क्योंकि when you are in your early years of your training, you want to have publications. उसका एक अपना ही एक नशा सा होता है कि I need to have 50 publications, 100 and all those things. I remember when I was doing my PhD, my mentor said to me, यार मुझे professorship के लिए 100 publications मेरी होनी चाहिए. So all I care about is you guys publish. And when he got 100, he got a professorship in Cambridge. So what I'm saying is that there are different incentives behind it, but he really helped me and he was a great inspiration for me. But that is not the way to do things. Okay, there are the way to do things. If you win a big award, if you've done some fundamental discovery, professorship will come to you. So it all depends how you see things. अब इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन आई थिंक हियर आई हैव enumerated them कि इंस्पिरेशन और जो क्रिएटिवनेस है ना, ये हैप्पीनेस से आती है, खुशी से. मुझे एक आर्टिस्ट मिला, वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड दे सेड टू मी कि वी पेंट व्हेन वी आर डिप्रेस्ड. आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि जो आर्टिस्ट हैं वो डिप्रेशन से भी इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं. दे यूज्ड टू पेंट बिकॉज so well when they were depressed. But I'm not saying that you get depressed. What I'm saying is it's better to be happy and use that as an inspiration, as a positive feedback loop. क्योंकि जब आप खुश होंगे, then maybe your neurons will be functioning in a better way. Intuition जो है ना, it's very difficult to define what it is and how it comes. ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको गिफ्ट होता है ये जाके. And I think it comes to people who are basically just thinking and dreaming and breathing about just one subject. And it can come for people who are doing academic research, it can happen for artists, it can happen for anyone जो बिल्कुल जो है उसमें डूब चुका हुआ है अपने फील्ड के अंदर. So intuition is something जो God gifted होती है, and it's very difficult for me to tell you or give you an idea कि intuition किस तरह से आप लेके आ सकते हैं अपने अंदर, other than कि आप बस मेहनत करते रहें and keep your intentions clean and pure. Inshallah, this thing will come to you. And visionary is also a part of it. It's an extension of it. आपकी vision होनी चाहिए कि where the things will be in a few years. आपने देखा होगा कि most of the people who win Nobel Prizes, they have done their research when they were in their undergrad. ये bachelor's के stage के ऊपर थे अक्सर. I think you would have seen a movie called A Beautiful Mind. अक्सर लोगों ने देखी होगी. And you would see that guy had not completed his PhD, but he got a Nobel Prize once he was in his 70s with all the schizophrenia, and other problems which he had. इसी तरह से ट्यूरिंग को आप देख लें, जितने भी लोग हैं, they are all basically, they have intuition and they have a vision, and they have also got an element of autism as well. So don't take that as a negative thing. Why I'm saying all of that is कि हम उन लोगों को ना साइड पे कर देते हैं कि ये खप्तीस आदमी है. These are the people who changed the world. And we are basically just picking up the pieces of what they did decades ago or centuries ago. So value those people and try to encourage your kids to think freely. उन्हों के ऊपर impose ना करें कि तुमने ये करना है. Let them think freely. Most likely they are more informative than we are because of the social media overwhelming, flooding. So they know कहाँ पे जा रही है चीज़ें. Listen to them and then give them tips, and inshallah, if you have brought them up in a good way, they will make the right decision. ये जो last point है ना, इसको मैंने इसी रेड में लिखा है कि I hate deadlines. Hate is a very strong word, but I literally hate deadlines. क्योंकि उससे ये होता है कि pressure set develop हो जाता है आपके ऊपर.
कि आपने ये पेपर फलानी डेट तक ख़त्म करना है, इसको सबमिट करना है, मुझे आइडिया चाहिए उस डेट तक। अब आइडिया कब आएगा? आई हैव नो आइडिया व्हेन द आइडिया विल कम, यू नो। कई दफ़ा आपको महीने साल लग जाते हैं जाके, और जिन्होंने ब्यूटीफुल माइंड देखी है आपको पता है कि हाउ मेनी इयर्स ही वेटेड फॉर दैट आइडिया टू कम। सो दीज थिंग्स, यू नो, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यू वांट टू रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग, यू नो। आप सोच सकते हैं कि शायद ये सब ज़ुबानी कलामी बातें कर रहा हूँ, बट वट एवर आई एम सेइंग इज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई सी पीपल who have achieved some sort of, you know, higher accomplishments, how they do it. क्योंकि कैम्ब्रिज के अंदर is a building which is the laboratory of molecular biology, उसके 6 floors हैं, and each floor always have 1 or 2 Nobel Prize winners. So what I'm saying is that whatever I'm saying to you, you don't have to take my word for it, but you can look up all those people who have won the Nobel Prizes and see what they have done, read their biographies, and you will see that they have got these traits in them. So try to get some inspiration from that and give it to your, and try to instill in your kids, you know, or among your family members. और ये जो शेर है ना गालिब का, I think this basically encapsulates where the ideas come from. I think ये अल्लाह ताला की ख़ास जो है ना वो देन होती है, it's a gift from God, and just cherish it. अब आप ये कह सकते हैं कि हम लोग तो मुसलमान हैं, the rest of the world isn't, but some people are not, and why are they winning Nobel Prizes, you know? The thing is that they have trained their mind, so you need to have that fertility of mind. This is very, very important. हमारा ठेका तो नहीं मिल गया हुआ कि because of religion we have a license to be, you know, to do everything in a leading position. We have to earn it. You have to work hard, you have to earn it, and this is really important. So when you have an idea, just consider that you are very gifted, और अल्लाह ताला का आपके ऊपर ख़ास करम है। ये अब्दुल सलाम साहब की मैंने एक उनके ऊपर एक आर्टिकल छोटा सा लिखा गया था, और ये था कि व्हेन ही वाज डूइंग रिसर्च, मैं जीसी से वो जा चुके हुए थे, तो उनको एक आइडिया आया, ही वर्कड ऑन इट, और जब उन्होंने वो काम को इस बंदे को प्रेजेंट किया, पॉली को, हु वाज वन ऑफ द नोबेल प्राइज विनर्स इन फिजिक्स, तो उसने कहा कि यार ये तुम्हारा आइडिया जो है इट्स बेसिकली रबिश, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अब आपको पता है कि हमारा कल्चर ऐसा है कि हमें को बड़ा कहना इस तरह की बात तो हम उसको ना एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल पीपल, वी आर वेरी, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वेरी हम्बल, एंड वी जस्ट रिस्पेक्ट आवर मेंटर्स, यू नो, इन अ वेरी डिफरेंट वे। जो गोरा है वो अपने मेंटर को भी क्वेश्चन करता है, एंड देयर इज़ नो काइंड ऑफ बैरियर बिटवीन दैम। सलाम साहब ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि आइडिया जो है ये तो फजूल है। आप यकीन नहीं करेंगे, उसी आइडिया को 2 चाइनीज़ ने कुछ अर्से के बाद एक्सप्लोर किया, एंड दे गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर इट। सलाम साहब का एक और आइडिया था, ही वर्कड ऑन इट एंड ही गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर अनदर आइडिया। जस्ट इमेजिन कि अगर उन्होंने क्वेश्चन किया होता अपने मेंटर को, तो ही वुड हैव गॉट 2 नोबेल प्राइजेस, जिस तरह मैरी क्यूरी को मिले थे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई एम नॉट सेइंग दैट यू क्वेश्चन योर मेंटर्स और आप उन लोगों को सस्पेक्ट करें, बट व्हाट आई एम सेइंग इज आई वांट यू टू थिंक, आई वांट यू टू क्वेश्चन थिंग्स, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, इफ़ यू हैव अ गुड मेंटर, वो आपकी इन बातों को बहुत पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वो कहेंगे यार ये अगली जनरेशन जो हम तैयार कर रहे हैं ना, ये थिंकिंग इंडिविजुअल्स की है, दे आर नॉट फॉलोअर्स। वी नीड टू क्रिएट अ जनरेशन ऑफ थिंकर्स, नॉट फॉलोअर्स। क्योंकि फॉलो करेंगे तो फॉलो तो पता है कौन करता है, इट्स अ हर्ड। आप देखेंगे एक रेवड़ होता है ना किसी भी जानवरों का, दे फॉलो समथिंग, बट द लीडर्स दे डोंट फॉलो। यू नीड टू बी अ लीडर, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट, एंड दिस इज हाउ यू थिंक। ये मैं आपको पहले सारा बता चुका हूँ कि कितने पब्लिकेशंस होने चाहिए। दिस इज बेसिकली जस्ट अ समरी ऑफ ऑल दोस थिंग्स। और ये होता है कि कभी ये ना सोचें कि स्मॉल अपॉर्चुनिटी है तो इसको आई जस्ट बेर इट, आई फॉरगेट अबाउट इट, बिकॉज इट्स ऑलवेज दीज हम्बल बिगिनिंग्स, यू नो, which lead to bigger things. Most of the people who have done great in the world, they always had very humble beginnings. So just think about that, and that is why having humility goes a long way. So stay humble, don't be arrogant. मैंने इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि there is no shortcuts in life, but you have to be realistic at the same time. अब ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई आइडिया था और आपने उस आइडिया को क्या किया, ये तो मैं न्यू इंग्लैंड जर्नल में पब्लिश करना चाहता हूँ। So if you try to do things like that, you will fail and you will feel depressed. So have an idea कि ये आइडिया जो है ये किस जर्नल के लिए सूटेबल हो सकता है। और यहाँ पे
speaking with your mentor, speaking with your senior colleagues really helps. Or after some times, you wouldn't have to go to them. You'll be able to do it on your own. ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, दिस इज समथिंग इज अ कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशन गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट. हम सब ने ये काम किया है, मैंने भी किया है. आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू एडमिटिंग ऑल ऑफ माई मिस्टेक्स. ओके, सो वी ऑल डू दैट, बट ट्राई नॉट टू डू इट. ओके, अच्छा डेटा कलेक्ट करें, इंटेग्रिटी के साथ डेटा कलेक्ट करें, डेटा की डॉक्टरिंग ना करें प्लीज़, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज इफ यू डू दीज थिंग्स गेट कॉट. Okay, so doctoring of the data is basically extremely unethical. So that's a no-no. But gigo means like आप half-hearted data लिया हुआ, idea भी आपका फजूल सा है, and then what you produce is basically a pretty lame article which doesn't get published. So that's what I mean by gigo. So unethical practices, they are different things. So that's a big red flag. So please don't. It's better not to do research than make up data and present it, because once you have a label like that, then just consider that's curtains for you. And I wouldn't shy away from saying to you that recently, 2 weeks ago, there was an editorial in Nature. 2018 में जो Nobel Prize मिला है फिजियोलॉजी का, is a geneticist. उसके 20 odd papers हैं which are being questioned right now for plagiarism and also doctoring of the images. I think maybe more than 20. So that is something which shows कि इसका scale क्या है. ये हमारे मुल्क से related बात ही मैं कर रहा doctoring की. This is an international problem. And this happens, at very, very high levels. So please be wary of that. तो ये होता है कि जब आप एक चीज़ को आप रिपीट करते जाते हैं ना, then you excel at it. अब आप सर्जन हैं, आप पहली appendectomy करते हैं या पहली लेप्रोटमी करते हैं, तो आपका हाथ जो है वो you have got rusty hands. But then slowly, it keeps getting better and better. इसी तरह से जब आप एक रिसर्चर बनते हैं, the first few publications are always a bit different than what it would be after 10, 20, 30 and so on. So it becomes a habit, and excellence becomes a habit as well. But you have to know that there are no shortcuts again. अब ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेंटर को किस तरह चूज़ करना है. लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं, सर आप हमें मेंटर कर दें एंड ऑल दोज थिंग्स. नाउ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर. उसकी ये वजह होती है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, पीपल हु आर फ्रॉम द सर्जिकल फील्ड है, they know who Michael DeBakey was. They know who Dental Cooley was. I wanted to go to them and be their apprentice or at least work with them for some time. But I never got that opportunity because they were in their late 90s, but they were still practicing in Texas. Like it's like they never chose me. But what do I do then? It's a very difficult thing to explain कि mentor जो है वो किस तरह से choose किया जाता है या mentor आपको choose करता है. मेरा फीलिंग ये है कि मेंटर अक्सर जो ना आपको चूज़ करते हैं. जो अच्छे मेंटर्स हैं ना, दे हैव एन आई फॉर टैलेंट. अगर आप किसी से फोर्सफुली जाके मेंटरशिप अगर आप उसे ले भी लेते हैं ना, मे बी इट विल वर्क, मे बी इट वुडंट, बट द मैजिक इज या जो एक अच्छा आपका है ना रिलेशनशिप, दैट हैपन्स व्हेन इट्स द मेंटर हु चूजेस यू, because then he knows कि इसके अंदर मैंने इन्वेस्ट करना है and I would like this guy to or this girl to progress. So I think this is very important. और ये हिस्ट्री थोड़ी सी है कि मेंटर है क्या चीज़. ये ओडेसियस था, आपने जो है ना ट्रोजन वॉर का तो सुना होगा. everyone knows what a Trojan is. So this Odysseus was someone who was going to the Trojan war, और वो अपने बेटे को जिस बंदे के पास छोड़ के गया कि वो उसकी कोचिंग कर सके, उस बंदे का नाम मेंटर था. So this name comes from that Greek person's name who was mentor. So mentor is not an English word, although there are so many words in English which are from Greek lineage, but the word comes from this episode. और उसमें आप देख लें उसने क्या कहा. उसने कहा कि टीचर, काउंसलर, कोच, फैसिलिटेटर, मोटिवेटर एंड अ फ्रेंड. This is something which we highly lack. It's always like a very dictatorial kind of feeling. Mentor ने ये कह दिया है, nothing there for us to say anymore. So this has to be a friendship. Of course there are barriers, there are boundaries, but it has to be a friendly thing because then their neurons work. Students जब होते हैं ना डिप्रेस या वो टेंशन में होते हैं, उनका माइंड ही काम नहीं करता, वो बिल्कुल माउफ हो जाता है. तो I think the friendly environment is very, very important. So this is a message for the senior colleagues here कि डिस्करेज कभी भी नहीं करना चाहिए किसी को. ठीक है, बुरा आइडिया आया है या किसी से गलती हो गई है,
दरगुजर करें, माफ़ करें, उन्हों को आगे हेल्प करें उनकी जर्नी के अंदर। और शफ़क़त जो है ना, ये हमारे रिलीजन भी हमें टीच करता है जाके, माँ से लेके अल्लाह ताला तक हमें पता है कि शफ़क़त है जो हमें यहाँ तक जिसने पहुँचाया और आगे भी ये चीज़ें ना दरगुजर करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स के साथ भी नेवर डिस्करेज दैम, उनको नर्चर करें, उनको अपने बच्चों की तरह डील करें उनके साथ एंड हेल्प देम ग्रो, बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट जनरेशन। हम लोग देखें, आई वाज सिटिंग ऑन सीट्स लाइक योरसेल्फ मे बी 15, 16, 20 years ago, and now how many more years would I be here, you know? There's always a limit. We are not here on this world forever. People who are sitting here, inshallah, one of you or more of you will be standing here one day, you know, inshallah. You keep working hard, you will be here, you will be sitting on those seats. So we have to prepare the new generation. This is the most important thing. जो हम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, but we need to leave a legacy behind, that there is a name which will be remembered, but leave a good legacy, not a bad one. इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस थे कि ग्रांट्स एप्लीकेशन किस तरह लिखें, सिस्टमेटिक रिव्यूज़ किस तरह से करें हम लोग, कुछ स्ट्रेटजीज बताएं, कोई हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, सेशंस होने चाहिए, वर्कशॉप्स वगैरह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वर्कशॉप आप करते हैं तो उसमें सीनियर मेंटर्स के साथ आप कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ इंटरेक्ट करें। आप रिसर्च ग्रांट्स के लिए तो एक पूरा सेपरेट लेक्चर चाहिए कि रिसर्च ग्रांट्स किस तरह लिखी जाती हैं, लेकिन ये कि विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन किस तरह जनरेट करना है और किस तरह से आपने कोलैबोरेटिव नेटवर्क बनाना है। हमारे कंट्री में ये है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट पब्लिश इन अ वेरी हाई इम्पैक्ट जर्नल, लेकिन उसका जो एक शॉर्टकट है वो ये है कि आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ढूंढें। जो बाहर के रिसर्चर्स हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट कॉलीग बैठे हुए हैं यहाँ पे, रीच आउट टू गायनेकोलॉजी कॉलीग्स अब्रॉड, आप उनके साथ अपने पेशेंट्स को आप कंट्रीब्यूट करें उनकी रजिस्ट्रीज के अंदर, उनके डेटाबेसेस के अंदर, एंड यू विल गेट ऑथरशिप्स ऑन दैट। कोई आपका एमडी स्टूडेंट है उसको आप रिक्रूट करें साथ, हो सकता है कि वहाँ के लोग आपको फ़ंड कर लें, पार्टली फंडेड को पीएचडी स्टूडेंटशिप क्रिएट हो जाए इस तरीके से। लेकिन जो मैंने 2 दिन पहले एक लेक्चर दिया था किंग एडवर्ड में, आई प्रेजेंटेड सम रिसर्च फ्रॉम लैंडसेट और नेचर से वो डेटा के साथ मैंने प्रेजेंट की थी कि मोस्ट ऑफ द पब्लिकेशन विच कम फ्रॉम एमर्जिंग कंट्रीज, मिडल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन, जिसमें सऊदी अरेबिया और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज आ रहे हैं, मोर देन 50% आर दोज विच आर बेस्ड ऑन कोलैबोरेशंस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। क्योंकि जब आपके साथ इंटरनेशनल ऑथरशिप आ जाती है ना आपके ऑथर्स पैनल पे, then all of a sudden those biases which the reviewers have, they disappear, क्योंकि people still question us कि का जो रिसर्च कर रहे हैं what quality it is. So try to develop those international collaborations and trust me, email आप करेंगे किसी को तो वो आपको most of the time if you write a good email to them, they will respond to you in a good way and they will try to establish some collaboration with you. So I think this is my last slide here, and this basically encapsulates everything that I have said. कि what should be the future landscape and what is the responsibility of the senior colleagues here, जो faculty members हैं, जो policy makers हैं हमारे country के अंदर, कि आपने जो है ना अगर आपसे गलती हो जाती है ना इतने बड़े स्टेज के ऊपर, तो फिर यह है कि it's very difficult to forgive you. Because what you are leaving behind is something which is worse than where you started off with. बच्चों से गलती हो जाती है तो उसको तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर बड़े थिंकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, अगर वो गलती कर जाए इस तरह की जिसका जनरेशनल इफेक्ट आए, तो आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड थिंग. सो आई थिंक विद दैट आई विल स्टॉप एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.